کھڑے ہو نا تم لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، ہم لوگ 1 گھنٹے تقریباً لیٹ ہو گئے، اس کے لیے آپ سب سے معذرت ہے. جیسے ہی ددھی سے روانہ ہوئے ویسے ہی جو ددھی کا ریلوے پھاٹک ہے اس کے بیچوں بیچ ایک ٹرک خراب ہو گئی، اور اس ٹرک کے خراب ہونے کی وجہ سے بہت لمبا سا جام لگ گیا. ہم لوگوں نے سوچا کہ پیچھے مڑ کر کسی دوسرے راستے کی طرف سے نکل آئیں، مگر پیچھے بھی جام آگے بھی جام. اس کی وجہ سے 1 گھنٹہ ہم لوگوں کو وہیں پہ رکنا پڑا. مجھے اندازہ ہے کہ بہت دور دور سے افراد یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. برواڑ سے بھی ہمارے مولانا صاحب نظر آ رہے ہیں، حاجی ضیاء الحق صاحب وادف نگر سے، ہمارے اشفاق صاحب، کم لوگوں کو میں جانتا ہوں، شاردہ پور سے. تو بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اس لیے وقت میں بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے علماء کی نعتیں ہوں یا تقریریں ہوں. بس 10 منٹ میں 2-4 باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے حکم شرعی جس نتیجے پہ ہم لوگ پہنچے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا. کلام الہی سے مجلس کا آغاز ہو چکا. نبی کی نعت کے 2-3 شعر پڑھ کر نبی کا ذکر بھی ہو جائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. میرے سرکار مدینے میں بولاتے رہنا، میرے سرکار مدینے میں بولاتے رہنا. میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا، غم دنیا غم عقبا سے بچاتے رہنا، غم دنیا غم عقبا سے بچاتے رہنا. کوئی مشکل نہیں ایسی جو نہ ٹالی تو نے، کوئی مشکل نہیں ایسی جو نہ ٹالی تم نے،
میرے داتا میری بگڑی کو بناتے رہنا، میرے داتا میری بگڑی کو بناتے رہنا۔ اور آخری شعر، کوئی نیکی نہیں دامن میں ہمارے آقا، کوئی نیکی نہیں دامن میں ہمارے آقا، مجھ گنہگار کو سرکار نبھاتے رہنا، مجھ گنہگار کو سرکار نبھاتے رہنا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی عمر 1000 سال ہو، 1000 سال وہ گناہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہا، پوجا پاٹ کفر و شرک کا کام کرتا رہا، لیکن اگر مرنے سے پہلے 10 منٹ پہلے اللہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، ایمان کا اجالا اللہ نے اس کے دل میں پیدا کر دیا، تو یہ لا الہ الا اللہ وہ دولت ہے کہ 1000 سال کے گناہوں کو یہ کلمہ طیبہ مٹا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، اور اس کا اپوزٹ سائیڈ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے 10,000 سال کی عمر دی، پہلے عمر ہوتی تھی، 10,000 سال کی عمر ملی آپ کو، 10,000 سال تک آپ نمازیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے، کروڑوں بار آپ نے درود شریف پڑھا، لاکھوں بار آپ نے قرآن شریف ختم کیا، لیکن اگر زندگی میں ایک کام کفر کا آپ نے کر لیا، ایک کام آپ نے شرک کا کر لیا، تو یہ شرک وہ پاپ ہے جو 10,000 سال کی نیکیوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اکاؤنٹ خالی۔ اگر مولانا صاحب نے سمجھایا یہ آپ نے کیا کیا بھائی صاحب، یہ آپ نے کیا کیا، ارے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیے گا تو یہاں سے نیا کھاتا آپ کا شروع ہوگا، پورا کھاتا آپ کا ڈیلیٹ، پورا اکاؤنٹ آپ کا خالی، بھلے سے کروڑوں نمازیں آپ نے پڑھی ہو، مگر ایک بار آپ نے ایسے کر لیا، ایک بار آپ نے پتھر کے مجسموں کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، ایک بار آپ نے اپنی پیشانی پر کسی نیتا کو خوش کرنے کے لیے قشقہ لگا لیا، ایک بار آپ نے کسی برہمن کو راضی کرنے کے لیے کان میں دھاگا لپیٹ لیا، پوری زندگی کی نیکیوں کو شرک کا ایک کام مٹا دیا کرتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، گھر ہو کہ نہ ہو، مکان ہو کہ نہ ہو، زمین ہو کہ نہ ہو، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر زبان پر لا الہ الا اللہ ہے اور دل میں اللہ کی وحدانیت کی تصدیق ہے،
تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کلمہ طیبہ کی تصدیق آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو بھلے سے اڈانی کی طرح سونے کی پلیٹ میں آپ پیشاب کرتے ہوں، چاندی کے برتن میں آپ استنجا کرتے ہوں، بھلے سے آپ فلائٹ سے چائے پینے جاتے ہو، پوری کائنات کی دولت آپ کو ملی ہوئی ہو، لیکن اگر ایمان میسر نہیں تو دنیا کا سب سے غریب انسان آپ ہی کہلانے کے مستحق ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جی پوری اسلامی تاریخ کا جو سب سے بڑا سدھانت ہے وہ یہی ہے کہ زمین جاتی ہے جانے دو، مکان جاتا ہے جانے دو، نیتا ناراض ہوتے ہیں ناراض ہونے دو، ووٹ نہیں ملتا ووٹ نہ ملنے دو، مگر ہم کفر کا کام کر کے اپنی پچھلی زندگی کی نیکیوں کو برباد نہیں کر سکتے۔ اور مسلمان الحمدللہ یہ تو پہچان ہے مسلمانوں کی کہ یہ بڑے کٹر ہوتے ہیں، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں چاہیے جائیے جہاں چاہیے رہیے، مگر صحابہ کو دیکھیے۔ حضرت بلال، ان کا جو مالک تھا امیہ ابن خلف، بڑا بدتمیز، بڑا آتنک وادی انسان تھا، اتیاچاری انسان تھا۔ حضرت بلال کی گردن میں رسی باندھ دیتا، محلے کے نوجوانوں کو رسی پکڑا دیتا کہ اسے لے کے کھینچو مکے کی گلیوں میں۔ میرے بھائیوں، آج بھی اتنا ٹیمپریچر وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ 5 منٹ دھوپ میں کھڑے نہیں رہ سکتے، اتنی شدت کی گرمی، پتھروں کی سرزمین، کنکریلی سرزمین، سنگریزوں کی سرزمین۔ جب حضرت بلال کو رسی باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے تو امیہ ابن خلف کہتا، بلال کیوں اتنی پریشانی اٹھا رہے ہو؟ کہہ دو کہ اللہ میرا پروردگار نہیں، محمد اللہ کے رسول نہیں، ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ مگر ہوش میں آتے تو یہی کہتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی خدا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے سچے پیغمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف گردن میں رسی باندھنا، مکے کی سڑکوں پہ گھسیٹنا، پیٹھ کے چمڑوں کا اکھڑ جانا، اور اس کے باوجود کلمے پر قائم رہنا۔ ایک صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ کفر کر بھی لیں گے 10 منٹ کے بعد پھر مسلمان ہو جائیں گے، کیا دقت ہے؟ جی صحابی جو ہوتے ہیں غوث قطب ابدال سب سے افضل ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی غوث نہیں، ان سے بڑا کوئی قطب نہیں۔ ساری دنیا کی نیکی کسی کے پاس ہو، لیکن جس نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کفر بک لیتے ہیں، پھر یہاں سے چلے جائیں گے، پھر مسلمان ہو جائیں گے، نہیں، بات اسی پہ ختم نہیں تھی۔ حضرت خبیب، ان کا جو مالک تھا وہ تو اور بڑا ظالم تھا، آگ کے انگارے سلگواتا، کپڑے حضرت خبیب کے جسم سے اتروا دیتا، اس سلگتے ہوئے انگارے پر ان کو لٹا دیتا، پیٹھ کا چمڑا جل کر، چربیاں پگھل کر آگ بجھ جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ پھر ان کا مالک آتا، کہتا، خبیب ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو بس کہہ دو کہ پیغمبر اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان ساری چیزوں سے تم بچ جاؤ گے، عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو گے۔ مگر جب ہوش میں آتے تو یہی کہتے، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ ہوش میں آتے تو یہی کلمہ پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، اس لیے سبحان آپ اللہ۔ اسکول کے ماسٹر ہوں، کوئی بھی موقع آئے یہ نہ سوچیے کہ نوکری رہے گی کہ چلی جائے گی، اپنا ایمان بچائیے۔ نوکری کرنے والے تو 10% ہیں،
90% को तो बगैर नौकरी के ही अल्लाह रिस्क दे रहा है। आप सियासत में हैं, ये न सोचिए कि नेताजी नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज होके क्या करेंगे? 5 साल उनकी उम्र है, 5 साल में भी कौन वो हमारा ताजमहल बनवाने वाले हैं। इसलिए ये न सोचिए कि नेताजी नाराज हो जाएंगे। साफ और सीधी बात, आपका धर्म आपके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। आपका जो काम है वो आप करिए, हम आपके कामों में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि चंद पैसों की लालच में हम अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरे भाइयों? इसलिए अगर मरते दम तक ईमान बचा के लेके चले गए कब्र तक, तो आपसे बड़ा कोई कामयाब इंसान नहीं। और दुनिया में ताजमहल छोड़ गए लेकिन ईमान आपके दिलों से चला गया, तो आपसे बड़ा फटीचर और आपसे बड़ा गरीब इंसान कोई नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पूरी मजबूती के साथ ईमान पर खड़े रहिए, पूरी कुव्वत के साथ ईमान पे खड़े रहिए। दुनिया में जितने भी नुकसानात उठाने हो उठाइए, मगर ईमान से सौदा न करिए, क्योंकि ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये संसार कितना बड़ा है। यहाँ से लेके दुद्धि तक, यहाँ से लेके अंबिकापुर और रायपुर तक ये संसार है। अमेरिका की दूरी 13,500 किलोमीटर। अमेरिका की दूरी, हमारे एक उस्ताद रहते हैं ह्यूस्टन अमेरिका में, तो मैंने वो सर्च किया कि इंडिया से अमेरिका ह्यूस्टन की का डिस्टेंस क्या है, तो आया 13,500। हो सकता है और शहरों की दूरी थोड़ी सी 1,000-2,000 बढ़ जाए। इतना बड़ा संसार, ये तो धरती का हाल है। चांद कहाँ है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर। मंगल ग्रह कहाँ है? 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। सूरज कहाँ है? 9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। और मेरे भाइयों, ये तो गिनती के चंद नाम हैं जिन तक साइंसदानों की रसाई हो सकी। हजारों कहकशां इस आकाश मंडल में है, और हर कहकशां में हजारों सितारों की झुरमुट है। सुभान अल्लाह। अब इतना बड़ा संसार, सूरज कितना बड़ा है? इस धरती के लायक 3 लाख धरती सूरज में डाल दीजिए, तब भी सूरज के आकार की बराबरी नहीं हो सकती। इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा मंगल ग्रह, इतना बड़ा चांद, इतनी बड़ी धरती, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ ये समुंदर। अब कोई कहता हो कि पत्थरवा संभाले हुआ है, तो उससे बड़ा पागल कौन हो सकता है? कोई कहता हो कि फला इंसान संभाले हुआ है, उससे बड़ा माखुर कौन हो सकता है? कोई कहता हो कि फला जानवर संभाले हुआ है, उससे बड़ा बेवकूफ क्यों हो सकता है? कौन हो सकता है? मेरे भाइयों, जो आदमी अपनी दुम न संभाल सके, वो चांद को क्या संभाल सकता है? वो सूरज को क्या मुसख्खर कर सकता है? वो शम्सो कमर के निजाम पर क्या हुकूमत कर सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, हम लोगों का ये 1000% यकीन है कि खुदा को हम देखें कि ना देखें, मगर एक खुदा है जो सूरज को भी चलाता है, चांद को भी चलाता है, धरती की आगोश से गल्ले पैदा करता है, समुंदर की तहों से मोतियों को पैदा करता है, एक तरह के दरख्तों से 10 तरह के फल वो पैदा फरमाता है। एक शक्ति, एक ताकत है, एक हस्ती है। उसी हस्ती को हम और आप अल्लाह ताला कहा करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप सब से अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत पहले मुझे ऐसा याद आता है कि कोई तलाक का मसला था, किसी साहब का हाथ कटा हुआ था, कोई साहब यही के रहने वाले जिनका हाथ कटा हुआ था, वो शायद एक बार हमको यहाँ लाए थे। मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 साल पहले की कोई बात है। उसके बाद ये आने का इत्तेफाक हुआ है। मेरे भाइयों, मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, जहाँ भी रहिए, जिस जगह भी रहिए, जैसे भी हालात में रहिए, मगर अपने ईमान की हिफाजत ज़रूर कीजिए, क्योंकि ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जिस रोज़ यहाँ से चंद भाई गए,
उस मसले के सिलसिले में, तो मैंने फलां साहब को जिनसे ये मसला जुड़ा हुआ है, मैंने उनको फ़ोन लगाया। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये ज़मीन का मसला वहाँ पे फंसा है? तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो है फलां जगह जाते हैं तो फलां जगह ऐसा करते हैं, तो फलां जगह ऐसा करते हैं, धाम पर जाते हैं, वहाँ जाते हैं। इसलिए मेरी सास ने ज़मीन दिया था, मगर अब मैं नहीं दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि उस ज़मीन को बेच कर आधा पैसा बगाड़ू में दे दूँ और आधा पैसा गया या और कहीं का वो नाम लिए। मैंने उनसे कहा कि मुसलमानों को दीन पर कायम रहना चाहिए, ईमान पर कायम रहना चाहिए, शराब से बचना चाहिए, जुआ से बचना चाहिए, समाज को संघर्ष करके अपने समाज को दीन पर कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बगाड़ू में अगर सब शराबी हो जाएं तो हुजूर नसीर मिल्लत मदरसा बेच के मुबारकपुर में पैसा भेज दे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐनुल उलूम के लोग, गया के लोग अगर सब बदमज़हब हो जाएं तो उस मदरसे की ज़मीन को बेच करके जामे अज़हर मिस्र भेज दिया जाए। मैंने उनसे फ़ोन पर कहा कि लोगों की अखलाकी गिरावट एक अलग मसला है, मगर जो ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक्फ हो चुकी वो ज़मीन का मसला अलग है। जिस मरहूमा ने वो ज़मीन मदरसे या मस्जिद के लिए दी है, देने के बाद अगर खुद वो चाहती कि वापस ले लें तो वो खुद नहीं ले सकती थी, ससुर दामाद बहनोई भतीजा तो बहुत दूर की बात। क्या बात। समझ में आ रही है बात? जिसने ज़मीन दिया हो, अगर ज़ुबान से शब्द निकल गया कि मैं ये ज़मीन मस्जिद में देता हूँ, मैं ये ज़मीन मदरसे में देता हूँ, मैं ये ज़मीन मुसाफिर खाना के लिए देता हूँ, मैं ये ज़मीन फला काम के लिए देता हूँ, जहाँ ये शब्द निकला वो ज़मीन इंसान की मिल्कियत से निकलकर ख़ास मिल्कियत इलाही में चली जाती है। सुभान अल्लाह। अब उसको न बेचा जा सकता है, न उसको किसी को हिबा किया जा सकता है, न उस ज़मीन को किसी से तबादला किया जा सकता है, न उस ज़मीन में अपने तौर से किसी भी तरह की कोई तब्दीली की जा सकती है। मैंने हंसते हंसते उनको ये भी कहा कि अगर कोई आदमी मस्जिद में आपकी चप्पल चुरा ले तो आप दूसरे की चप्पल लेके भाग जाइएगा। जी। फला साहब ने आपकी ज़मीन दबा ली, या फला साहब ने आपके साथ ऐसा जुल्म किया, या फला साहब का ऐसा मामला है, वो एक अलग मामला है। उसकी वजह से जो ज़मीन वक्फ हो चुकी है उसमें 1 इंच की तब्दीली नहीं हो सकती। आप तो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने ज़मीन दी है वो खुद ये चाहती कि मैं उसको बदल दूं तो खुद ये इख्तियार उनको भी नहीं था। समझ में आ रही है बात? इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि मरहूमा ने ये ज़मीन मस्जिद मदरसे के लिए दी है या नहीं दी है? आप में से कितने लोगों को इस बात का इल्म है? मरहूम और मरहूमा दोनों। हाँ, मरहूम और मरहूमा ने ये ज़मीन दी थी मस्जिद मदरसे के लिए, इस बात का इल्म आप लोगों में से कितने लोगों को है? अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो आगे का हुक्म तो बिल्कुल कन्फर्म है। जो जानते हैं वही हाँ, खाएं। जो जानते हो वही हाथ उठाएं, क्योंकि ये पंचायत वाली वोटिंग नहीं है ये। जी। 10-12 लोग। आप लोगों में से किसी ने, सदर साहब आप बताइए उस ज़मीन के बारे में। लिखाया पड़ा है, सलीम भैया लिखे हैं। जी सलीम साहब आप बताएं, आपका नाम आया था, किसी ने कहा कि वो कागज़ उन्हीं के पास था। जी तो एक विटनेस के तौर पे हूँ, अगर दोनों हाजिर रहते तो मैं अपनी बात रखता, लेकिन दोनों में से यहाँ कोई नहीं है, लिहाजा आगे वाली बात अब आवाम से इस बात की पूछा जाए। अच्छा, दोनों का मतलब? जिसने मस्जिद वक्त की है उनके वारिसीन भी नहीं है, जिसने मदरसे के लिए वक्त किया है वो लोग उनके वारिसीन दोनों भी नहीं है तो विटनेस क्या करेगा? अच्छा, दोनों पार्टी नहीं है, दोनों में से कोई ही नहीं है तो तो ये सब गांव वाले हैं ये? अच्छा दोनों अच्छा। पार्टी है ही नहीं तो दोनों को होना ना चाहिए, पता पूछताछ करेंगे। इन लोग तो हाथ उठा दिए, हम जानते हैं मस्जिद वाले जो दिया है वो मुझे नहीं है तो क्या जानते हैं? मस्जिद वाले के वारिसीन लोग हैं, मस्जिद वाले के वारिसीन कौन लोग हैं? यहाँ पे आए नहीं है। हजरत अभी उनसे ना हम लोग बात करने के लिए गए थे। हाँ। उनसे मैं पर्सनली मिला था हाँ। कि हजरत आ रहे हैं और आपको आना है। तो ठीक है, हम आएंगे, जो सही होगा सहयोग भी देंगे। अभी ये कसमुद्दीन के यहाँ बैठे हुए थे दुकान पे, जो पुराने सदर साहब थे,
उनके यहाँ भी हम लोग बुलाने के लिए गए तो वही बोले कि मुफ्ती साहब जैसे ही पहुँचेंगे हम आ जाएंगे। जस्ट फिर हम उनके बुलाने के लिए गए कि मुफ्ती साहब अब आ चुके हैं, चलिए घर चले गए। अच्छा। और दोनों फर्क नहीं। हाँ। और उस दिन हजरत हम लोग जब गए हुए थे तो आपका खुद मोबाइल पे अब्दुल सलाम फूफा जी से बात हुआ था और वो खुद बोले थे कि अब आप आ रहे हैं हम तो आएंगे ही जी। अब देखिए वो भी नहीं आए हैं। उस मोबाइल पर आज़ाद साहब ने भी ये बात कही थी कि हाँ मेरी सास ने ज़मीन दिया है। ये शब्द मेरे ख्याल में मोबाइल की रिकॉर्डिंग में भी होगा कि मेरी सास ने ज़मीन दिया है, मगर ये लोग फला जगह जाते हैं, फला जगह जाते हैं और रवैया इन लोगों का ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़मीन नहीं दूंगा और उसको बेचकर मैं पैसा फला जगह बेच दूंगा, भेज दूंगा। तो फ़ोन ही पर हमने कहा कि वो ज़मीन अगर वक्फ की हो चुकी है तो फिर किसी भी शख्स को उसमें कोई रद्द बदल करने का इख्तियार नहीं है। और कागज़ हो कि न हो, सलीम साहब के पास कागज़ हो कि न हो, वो बयान दे कि न दे, अगर आम मुसलमान इस बात के गवाह हैं कि ये ज़मीन मस्जिद के लिए दी गई है तो आम मुसलमानों की गवाही खुद ही काफ़ी है। और ये बात भी पेश नज़र रखना चाहिए कि कागज़ लिखाना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कागज़ लिख के रजिस्टर्ड कर दें तभी वो ज़मीन वक्फ होगी, ऐसा नहीं। हमने ज़ुबान से कह दिया कि मैं अपना मकान कब्रिस्तान में देता हूँ, हो गया काम ख़त्म। अब अगर कल हो के हम खुद चाहें कि उसमें कुछ रद्द बदल करें, हम खुद नहीं कर सकते, मेरी औलाद और मेरे बेटी दामाद वो तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और पेश नज़र रखना है, जो ज़मीन वक्फ हो चुकी, अगर उस वक्फ शुदा ज़मीन को कोई कब्ज़ा करने से रोके तो हमें उसके ख़िलाफ़ संघर्ष करना है। जैसे बाबरी मस्जिद का मसला 50 साल 1949 से लेकर 2020-21 तक ये मामला चला, मुकदमा चला। क्यों चला? छत्तीसगढ़ वालों को उससे क्या लेना देना, एमपी वालों को उससे क्या लेना देना, झारखंड और उत्तर प्रदेश वालों को क्या लेना देना। मसला तो सिर्फ एक शहर का था, मगर जो ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक्फ हो चुकी वो अल्लाह की मिल्कियत ख़ास में चली जाती है और उस ज़मीन की हिफाजत करना ये पूरी मिल्लत का फरीज़ा हो जाया करता। इसलिए दो बातें मुझे कहनी है। मैंने जो अपनी गुफ्तगू के शुरू वाले हिस्से में ईमान के मसले पे ज़ोर दिया, मैं उस हवाले से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई मुशरिकाना काम, कुफ्र व शिरक का कोई काम इस आबादी में होता है तो उसको फ़ौरन रोकिए, फ़ौरन उन चीज़ों से अपने आप को बचाइए। अगर जाने अनजाने में हमारा कोई भाई चला गया है तो खुले दिल से तौबा करके कलमा पढ़ के अपने आप को ईमान के दायरे में वापस ले आए। ये आपकी इस्लाह की ज़रूरत है। और ज़मीन के मसले में अगर इस बात की तस्दीक है कि ये ज़मीन उस बूढ़े मरहूम ने या मरहूमा ने वक्फ़ किया था तो ये अल्लाह की मिल्कियत है। कोई भी शख्स उसको न कब्ज़ा कर सकता है, न बेच सकता है, न उसमें रद्द बदल कर सकता है, न कोई भी शख्स उसमें किसी भी तौर से अपनी हुकूमत का इजहार कर सकता है। मस्जिद वाले पार्टी तो हैं। कौन है मस्जिद वाले? यहीं पे है, बगल में घर है। तो बगल में तो है उनका विदेश में सब है, सब तो यहीं पे। कोई दूसरा चला जाए उनको लाने, ये ना और किसी को रख लीजिए। साबिर भाई को ले लीजिए। साबिर रशीद भाई के अलावा लोग जहाँ सब अब्दुल रशीद भाई। हाँ, जिन लोगों में तनाव रहता है वो न जाए। अपना ईमान बचाए। हाँ, अब्दुल रशीद भाई किसी दूसरे को भेजिए उनको बुलाने के लिए। 4 आदमी चल जाओ ना। साबिर भाई, फखरुद्दीन भाई चले गए। ये ज़मीन यही है ये पे है, ये बगल। अच्छा, इसके बगल में है। नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते भी थे। अच्छा, उसी ज़मीन पर ईद बकरीद नमाज यहाँ पर पढ़ते भी थे, पढ़ा भी रहे। कौन?
अच्छा, वो खुद भी पढ़ा रहे थे। हाँ इमाम साहब। ओह, और अब क्या कहते हैं? अब वो छोड़ दिए हैं, तो अब अभी वीरान था, तो अभी हाफिज जी फिर रखे हैं, तो फिर मतलब अरे अभी रखिए ना उसको नाश्ता ला। पहले सवाल को सुनिए, इसके बाद जवाब दीजिए। जब क्या बोले समझ में नहीं आया था, उन्होंने जो सवाल किया था आपको पता चला क्या बोले, फिर से पूछ लीजिएगा। जैसे उस जमीन पर नमाज भी उसी में रखिए, हो रख चुकी दीजिए, है। रख दीजिए उसी में। ईद बकरीद नमाज यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। हाँ खत्म होगा तब सब लोग उसमें पढ़ते हाँ हाँ हाँ, ईद बकरीद की नमाज उसी जमीन में होती थी। आज़ाद साहब खुद ही पढ़ाते थे। और कब से बंद है उसमें? 3-4 साल। अच्छा, 3-4 साल से बंद। ईदगाह पढ़ते हैं। अच्छा, बाबू भेजो ना साथ में, 4 आदमी मिल के जाओ।